this fin tip, then it means that now if we would calculate the heat transfer, that would be less than the actual value, because we are ignoring this. So in order to accommodate for that less heat transfer, if we increase the length a little bit, because it is L at the moment. So if we increase it to some a little bit more, that is L plus T by 2, that is LC, that is the corrected length. In this case, so in that case, because we are increasing the length of the fin, so it means that the heat transfer which we are ignoring from the fin tip, that would be accommodated by the increase in length, which is called the concept of corrected length. Okay. So now the last concept of this fin analysis is the corrected length. Okay. So that is the thing which I have just explained now, because I just told you from the table that the heat transfer for the convective boundary condition is quite complex formula, which is written in equation 151. But if we compare it with the adiabatic fin tip, that is quite simple, m into tan hyperbolic ml. So it means that if we can uh, bypass this convection and we say that the fin tip is adiabatic, then we can kind of avoid this lengthy calculation. But the penalty of doing that is that we are reducing the heat transfer which would have been happening from that fin tip. So in order to accommodate that, we introduce the concept of corrected length. So the fin tip without convective boundary condition can be approximated as adiabatic fin tip using a corrected length, because we are now increasing the length a little bit to accommodate for that fin tip कन्वेक्शन. ठीक है. और उसको हम फार्मूले को, ये जो इक्वेशन 152 थी उसमें जहाँ पे लेंथ ऑफ द फिन आ रही है, वहाँ पे एल सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि करेक्टेड लेंथ है. नाउ now how to calculate corrected length? That is very easy, that we can calculate it by the original length plus t by 2. T by 2, when we have got a rectangular fin, then we add t by 2 into the original length. So now the length would be increased a little bit, and that would make up for that neglected fin tip boundary, fin tip heat transfer. And then if it is a pin fin, then in the formula would be equal to L plus D by 4. And the analysis of by using this corrected length has shown that the error associated with this negligible. Okay. So we can use it, and then we can also use this corrected length for the efficiency formula. So for the efficiency, if we calculate it for the adiabatic fin tip, that is equal to tan hyperbolic into MLC divided by MLC. So it means that this efficiency of a singular fin, that depends upon this parameter m into LC, because if you can see in the numerator, that is also tan hyperbolic of this quantity MLC, and then for the denominator this is also MLC. So it means that efficiency for a single fin, that depends entirely on this quantity MLC. Now this MLC can be written in a little bit different way. ठीक है. अगर हमारे पास एक हो यहाँ पे, if I say that we have got, just a minute, if we have got here, it is not working somehow. Okay, okay, just leave it then. It is just hanged somehow. Let's try it again. If this is kind of a fin, and if we see the cross sectional area of that fin here, kind of here, that would look like
दिस, यहाँ पे ये क्या चीज है, दिस इज एल सी, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू, और ये चीज हो जाएगी हमारे पास थिकनेस। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू कौन सी डायमेंशन है, जो इनटू द बोर्ड है, ये हमारे पास यहाँ पे थिकनेस है। ठीक है, अच्छा जी, अब एम एल सी को अगर हमने लिखना हो तो एम एल एम किसके इक्वल होता है, अगर आपको पता हो, एच पी इंटू के ए सी इंटू एल सी, right? So perimeter for a rectangular fin, that is equal to 2 into w plus t, or that is approximately equal to 2w if width is very greater than thickness. It means that fin is quite thin. Okay, and what is the AC here, cross sectional area, that would be equal to W into T, right? So if we put that value there, then MLC would be equal to 2W uh, 2WH divided by K into WT into LC. ठीक है, so this W would be cancelled out with this W, and then here we would have equal to 2H into KT LC. Right. Now, if we introduce one more area, that is the profile area. What is profile area? Profile area is something that if we look at from the frontal view, so from if we look at the frontal view, the fin which is which the area we can see in xy plane, that is LC into time t. Oh, just a minute. So let me do it a little bit. Now, if we write it here, AP is equal to LC into T. So, if we want to introduce that LC here, then we are going to multiply this under root term with LC and divide it with LC. So, that would be equal to 2LC, 2 into, sorry, not 2, K into LC T H into LC, and then this can be written like 2 into H upon K AP into LC 3 by 2, because when this LC would come uh, out of this under root, then it would be LC 1 by 2, so it would become equal to LC 3 by 2. Now this term, now we have written MLC, which was our original term. We have written it in terms of 2H divided by KAP. What is AP? That is the profile area, which is the area which we look, which we see it from the frontal point of view. ठीक है, यहाँ पे अगर देखें व्यू पॉइंट उसका, अगर देखें तो अगर हम फ्रंट से देखें तो वो जो हमें नजर आ रहा है, दैट इज एल सी इंटू टी। ठीक है, और अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो W इंटू टी है, और पेरीमीटर वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो अब हम ये जो ये इस टर्म के अगेंस्ट हमने एफिशिएंसी की कर्व्स लोगों ने ड्रॉ की हुई हैं, एंड देन वी कैन, इफ वी नो the value of this parameter for a given case, then we can easily calculate the efficiency of a singular case. Let me go back to the lecture slides and let you show the those curves. एक्सक्यूज मी सर, जी सर प्रोफाइल एरिया के बाद से जो आपने इक्वेशन ड्राइव की है, जी नीचे भी एलसी लिख दिया, ऊपर भी एलसी लिख दी है, ये समझ नहीं आया सर। जी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये
बेटा आपका नाम आतिफ है? यस सर। अच्छा जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा किया कि क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ तक क्लियर है, एम एल सी इज इक्वल टू 2h इंटू के टी इंटू एल सी, यस ये सर। वाले पॉइंट। यस सर, यहाँ ये पे क्लियर है। अब हमने क्या किया है कि ये जो अंडर रूट है इसके अंदर हमने एल सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और एल सी से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। वो मैंने लिख दिया ये नीचे, 2 into LCH ओके सर। डिवाइडेड बाय के एल सी इंटू टी। अब ये जो के एल सी, एक मिनट है, एक मिनट दे दें, मैं उसको हाईलाइट कर दूं। ये वाली जो चीज है जो मैंने रेड से हाईलाइट की है, एल सी इंटू टी, एल सी मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज इक्वल टू ए पी, ठीक है। अब अगले स्टेप ओके में सर। मैंने क्या किया है कि 2h इंटू के इंटू ए पी कर दिया, और जो एल सी यहाँ पे था न्यूमरेटर में उसको मैं यहाँ पे बाहर ले ओके गया, सर। तो वो एल सी 1/2 था, तो एल सी 1/2 इंटू एल सी वन पावर, तो वो एल सी 3/2 हो गया, ठीक है जी। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मे बी इट वाज नॉट क्लियर टू एवरीवन, सो इट मे बी नाउ, ठीक है। सो दैट इज गुड। Participation in positive participation in the class is always good. So efficiency formula is equal to hyperbolic tan MLC divided by MLC. So as efficiency is only dependent upon this parameter MLC, so for a rectangular fin we discussed that perimeter is equal to 2w plus t, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो wt के इक्वल होता है, or we can write it perimeter is equal to 2w once we have assumed that width of that fin is quite large as compared to its thickness, so we can write it 2h upon kt under root into lc, and then we introduce the profile area, fin profile area, which is lc into t, and then it means that we need to multiply and divide this numerator and denominator with lc, and then in the denominator lc into t would become equal to ap, and then here numerator one goes out, and then it would be lc 3/2. So it means that this term on the right hand side, that efficiency only depends upon this term. So it means that now we can draw curves for efficiency for this parameter. So people have drawn it for different type of fins for your convenience. Like here we can see three curves. On the y-axis we have got that fin efficiency in percentage. It means 0% and 100%. That is the y-axis. On the x-axis we have got that parameter lc 3/2 h h upon k a p अंडर रूट। और उसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास तीन कर्व्स हैं। एक है रेक्टेंगुलर फिन के लिए, जिसके लिए ये जो सबसे नीचे वाली कर्व है रेड, उसके बाद ये है हमारे पास ट्राइंगुलर फिन ये फिन के लिए, और ये जो कर्विलीनियर फिन टाइप जो सी है वाई इक्वल टू एक्स के जिसका प्रोफाइल हो, तो इन तीन के लिए हमारे पास है। अगर हम ये वाला पैरामीटर कैलकुलेट कर सकें और हमें ये शेप पता हो, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट व्हाट इज द efficiency of a single fin for given this parameter which is on the x-axis, ठीक है। So these were for these three fins, and then for the annular fin they have also defined this parameter lc 3/2 h upon kap, ठीक है। जैसे हमने रेक्टेंगुलर फिन के लिए किया, इसी तरह हम इसको एनुलर फिन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और एनुलर फिन में अगर देखें तो वो आउटर रेडियस कौन सा है, जो कि R2C यहाँ पे है, ठीक है। R2 जो कि यहाँ पे है, R2 डिवाइडेड बाय R1 की जो रेशियो है वो 1 2 3 5 अगर हो, तो उसके लिए हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है। So I understand that we haven't done any numerical for the annular fin. So we are going to do one numerical for the annular fin because they are also frequently used in practical engineering applications. So it would kind of give you a little bit better understanding that how to handle uh, uh, firstly for the problems using annular fin, and then if we are given
if we have to design a system of fins rather than individual fin analysis, which we usually do in practical application, that we analyze the whole system of the fins rather than doing the analysis on a singular fin. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे जो बाइक्स होते हैं उसका जो इंजन होता है उसके ऊपर अगर आप देखें तो वो एनुलर रिंग्स टाइप वो फिन्स होती हैं. ठीक है, सो आई हैव टेकन दैट एग्जांपल बिकॉज दैट वी यूजुअली ड्राइव बाइक. Most of us usually come across driving bikes. So the engine cylinder of a motorcycle is constructed of two uh, 2024-T6 aluminum alloy, whose thermal conductivity is given, and the total height of that engine cylinder engine, that is 0.15 meter, and outside diameter is 50 mm. Outside diameter means that this diameter, it means that this would be equal to 25. R1 would be 25. Under typical operating conditions, the outer surface of the cylinder is at a temperature of 500 Kelvin. So it means that this base temperature of this engine is 500 Kelvin, and it is exposed to ambient air which is at 300 Kelvin, which is basically 27 degrees centigrade, with a convection coefficient of 50 watt per meter square Kelvin. So H value is also given for the surrounding air. Now, annular fins are integrally casted with the cylinder. इसका मतलब ये है कि जब उसको कास्टिंग करेंगे तो उसके अंदर कोई थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि वो उसका इंटीग्रल पार्ट है. जो जब हमने डाई कास्टिंग की तो वहाँ पे जो मोल्ड बनाया तो वो मोल्ड ही ऐसा था इंजन का, ये fins they were integral part of it. Rather than we press fit it afterwards, we just make them at the time of casting. ठीक है, so they were integrally casted with the cylinder to increase heat transfer to the surrounding. ठीक है, हम फिर इसलिए अटैच कर रहे हैं ताकि वो जो हीट इस इंजन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है दैट कैन बी इफेक्टिवली taken out of this engine, right? So uh, now we are considering five such fins. We can see one, two, three, four, five. फिर क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया जा रहा है तो ये वो जो जिसे कहते हैं कट थ्रू क्रॉस सेक्शन है, वरना ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा और उसके ऊपर एनुलर फिन्स हैं लगी हुई. ठीक है जी, जैसे शुरू में मैंने लेक्चर स्लाइड के शुरू में एक फिगर थी उसके अंदर उसका पूरा 3 dimensional व्यू एनुलर फिन्स का शो किया गया था. तो कंसिडर फाइव सच फिन्स विच आर ऑफ थिकनेस, थिकनेस भी गिवन है 6 mm और लेंथ उनकी 20 mm है. तो इसका मतलब ये है कि जो आउटर रेडियस होगा वो 45 mm होगा, क्योंकि इनर रेडियस जो कि जहाँ पे सिलेंडर का जो आउटर रेडियस था वो 25 था, उसमें जब हम 20 mm लेंथ ऐड करेंगे तो जो R2 की वैल्यू है हमारे पास वो 45 mm हो जाएगी, क्योंकि वो लेंथ ऑफ द पिन इज 20 mm. Now what we need to do here, we need to calculate the increase in heat transfer due to use of the fins. So we need to know that how much increase in heat transfer has occurred due to use of fin. So it means that we need to do two types of analysis. One is without fin on this cylinder body to calculate the heat transfer without fins, and then we also need to do the analysis of the entire system comprising of these five annular fins in order to calculate the heat transfer with fins. So then if we would subtract both quantities, it would give you the increase in heat transfer due to those fins. ठीक है, so first of all we would do the analysis with fins. ठीक है, तो अगर हमने टोटल सिस्टम के लिए निकालना हो, अगर हमने वैल्यू for the whole system, that would be equal to QF is equal to HAT into 1 minus NAF upon AT, 1 minus efficiency of F into theta of B.
Now, if we can kind of put those values, we can kind of see those values which we already know. One is H value, we know from the data. Theta b, that is also known, that is TB minus T infinity. TB value is 500, T infinity value is 300 Kelvin. So theta b is 200 basically. So now the unknown number of fins, they are known to us, n value is 5. Now we need to calculate first thing, that is AF, that is the uh, circular surface area of a fin. Then we need to calculate the total area of the fin, and the third thing we need to find is efficiency of fin. So first of all, if we see it from the top, this fin, okay, so what we see here, if I kind of do this calculation here, if I can show you that view here, अगर टॉप से देखेंगे, जस्ट, तो हमें एक इनर सर्कल नजर आएगा जो कि उस इंजन का है, और एक हमें उसके आउटर सर्कल नजर आएगा। ये आउटर सर्कल कौन सा है, जो कि टॉप से देख रहे हैं, ये जो इनर सर्कल है, ये फिन, ये वो है जहाँ पे ये इंजन का सिलेंडर है, और ये जो आउटर फिन है, ये वो वाली चीज है जो कि फिन का रेडियस। तो ये जो इनर रेडियस है ये R1 है, और ये जो आउटर रेडियस है ये R2 है। R1 की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी, R1 की वैल्यू है हमारे पास 25 mm, और R2 की वैल्यू है हमारे पास 45 mm। अगर हम ये वाला सरफेस एरिया जो कि मैं ये वाला सरफेस एरिया जो कि अब मैं स्ट्रेट लाइंस लगा रहा हूँ, ये वाला वो वाला एरिया है जो कि फिन्स वाला एरिया है, जो कि एक साइड फिन, और दूसरी साइड पे भी क्योंकि इतना ही एरिया होगा, तो टोटल एरिया ऑफ वन फिन, दैट इज इक्वल टू 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये टॉप पे भी एरिया है ये वाला, और बॉटम पे भी है, और इंटू पाई इंटू R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर। ठीक है, ये बात समझ आ गई है, क्योंकि पाई R2 स्क्वेयर तो ये बाहर वाले का एरिया है, पाई R1 यहाँ पे स्क्वेयर आना था, पाई R1 स्क्वेयर इज दिस इनर एरिया। तो हमें क्योंकि सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए जो कि ये स्ट्रेट लाइन, उसकी वैल्यू होगी पाई R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर। ठीक है, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये टॉप एक साइड का एरिया है, वो बॉटम साइड पे भी उतना ही एरिया अवेलेबल होगा हीट ट्रांसफर के लिए फ्रॉम वन पर्टिकुलर फिन। तो आई होप के ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ फिन इज इक्वल टू 2 पाई। अब इसमें एक चीज देखिए कि क्योंकि असल में तो ये कन्वेक्शन होनी थी यहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ द एनालिसिस वी यूज द दैट कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्टेड लेंथ। तो यहाँ पे देखें तो उन्होंने R2C यूज किया हुआ है, करेक्टेड रेडियस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एडियाबैटिक फिन टिप वाले फार्मूले यूज करेंगे, तो इसके लिए फिर हमें करेक्टेड जो लेंथ्स हैं वो यूज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने करेक्टेड रेडियस यूज किया है जो कि R2C है, और अगर हम उसको यहाँ पे देखें कि R2C कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो R2C के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे अगर इस क्योंकि eventually we are going to use this table, this not table, this is a kind of a graph which we are going to use to calculate the efficiency value। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो R2C की वैल्यू है R2 प्लस T/2। ठीक है, तो R2 इस केस में क्या है, हमारे पास 45 mm है, और थिकनेस की वैल्यू है फॉर अ सिंगुलर फिल्म दैट इज 6 mm। तो 45 प्लस 3 वुड दैट वुड बी इक्वल टू 48 mm। तो वही अगर आप देखें तो उसको मीटर में अगर चेंज करें तो 0.048 मीटर माइनस 0.025, तो वहां से हमारे पास एरिया आ गया। अब एरिया फॉर अ सिंगुलर फिन आ गया।
अब अगर हमने प्रोटेक्टेड रेडियस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये निकालना है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 48 mm, जो कि हम ऊपर यूज कर चुके हैं। और प्रोटेक्टेड लेंथ अगर निकालनी है तो इसके केस में हमारे पास L प्लस T/2 होगी, एंड देन दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 6/2 23 mm। तो हमारे पास प्रोटेक्टेड लेंथ भी 23 mm आ गई। एंड देन टोटल सरफेस एरिया किसकी इक्वल होता है, NAF प्लस AB। तो AF हम पहले निकाल चुके हैं, इंटू एन, वो हम कर सकते हैं 6 इंटू 0.0105, दैट वुड बी इक्वल टू 0.0527 प्लस ए बी क्या चीज है, ए बी इज द बेस एरिया वेयर देर इज नो फिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल का सरफेस एरिया निकाल लेंगे सिलेंडर का, वो किसके इक्वल होगा, 2πr/h। ठीक है, और इसमें r की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, R1 की, जो कि 25 mm। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर इंजन सिलेंडर है, इसका टोटल एरिया जो सा है हमारे पास 2πr1h है। ठीक है, माइनस आपके पास वो वाला एरिया हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जो कि उसके जिसके ऊपर फिन्स लगी हुई हैं, और वो वाला एरिया NT वाला एरिया होगा। और वो अगर यहाँ से देखें तो आपको ये 6 mm है, ये 6 mm है, ये 6 mm है, ये 6 तो ये 5 है ना, तो 5 × 6 30 mm टोटल। तो यहाँ पे अगर देखें तो 0.15 में से वो 30 mm को माइनस किया गया है, क्योंकि वो हम वो वाला बेस एरिया या प्राइम एरिया निकाल रहे हैं जहाँ पे फिन नहीं है। ठीक है, so hopefully these two areas are clear. AF is the surface area of a single fin into n number of fins, plus AB is the surface area of the prime surface. Prime surface is that surface there where there is no fin. ठीक है, तो ये सिंपल यानी कि ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस हैं। तो आई होप दैट दीज आर क्लियर। अब हमने इस फार्मूले के अंदर ATB फाइंड कर लिया और AF भी फाइंड कर लिया। द ओनली थिंग विच इज नॉट नोन टू अस दैट इज the efficiency of a single fin, so that can be calculated by using this uh, graph. Yes, any question? Okay, no question, it appears. So now it means that if we know the value of R2 upon R2C upon R1, so that value would be equal to R2C upon R1, that would be equal to 1.92। तो इसका मतलब ये है कि वो 1.92 का मतलब ये है कि ये 2 के वाली जो कर्व है, ये इसके ऊपर या इसके करीब करीब यहाँ पे डाटा लाई कर रहा होगा, जो कि हमने देखना होगा डाटा। ठीक है, R2C हमें पता चल गया, R2C डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू हमें रेशो पता चल गई 1.92। द सेकंड थिंग वी नीड टू नो इज LC 3/2 H अपॉन KAP। ठीक है, AP किसकी इक्वल है, LC इंटू T, so that would be equal to 23 into 6 mm, so that 1.38 into 10 to power minus 4। तो अगर हम देखें तो यहाँ से LC 3/2 H अपॉन के AP की वैल्यू 0.15 के इक्वल आती है, और हमारे पास 1.92 है उसकी वैल्यू ऑफ R2C अपॉन R1। अब ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये 0.15 पे ये ग्रीन लाइन है जो कि जा रही है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये जो पैरामीटर है, जब इसकी वैल्यू बहुत लो होगी तो डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती सारी कर्व में। तो यहाँ पे अगर ये वाली कर्व पे देखा जाए, जो टू वाली कर्व है, वहां पे अगर एक ये ब्लैक सर्कल मैंने लगाया है, और टू वाली कर्व को जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी ये वाली वर्टिकल लाइन, वहां पे अगर हम हॉरिजॉन्टल वैल्यू देख लें तो वो तकरीबन 0.95 के इक्वल आ रही है। तो 0.95, 0.94, 0.96, 0.97, दैट इज इक्वली एक्सेप्टेबल, क्योंकि दैट इज that visual error, but it cannot, we cannot say that it is less than 80। ठीक है, because we are pretty much sure that for the 0.15 value it should be around 93 to 97, some in the range of that। ठीक है, so
that much error is acceptable, but it is not like the something that it is less than 90 or something like that. Okay? So now we know the value of efficiency of F. So all the things are given to us. So we just put the value in equation 147. This is something AL is written by mistake, so I would correct it. So if we put in the values, so because H value is given, then AT value we have calculated, AF, NAF value we have calculated, AT again, and then 1 minus efficiency of F, that because efficiency for a single is 95%, so that would be 0.05, and theta b, that is TB minus T infinity, which is 500 minus 300, which is 200 Kelvin. So that comes out to be 690 watt. Now that is the heat transfer with with the use of fins. Now without fin क्या होगा, बड़ा सिंपल है, वो कैसे निकाल लेंगे, एच इंटू सर्फेस एरिया ऑफ द फिन, सर्फेस एरिया ऑफ द फिन जो टोटल वो किसके इक्वल है, 2 पाई r1 इंटू एच, क्योंकि बेस अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई फिन नहीं है यहाँ पे, तो सरफेस एरिया ऑफ दैट इंजन सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई r1 इंटू एच, एच इज द लेंथ ऑफ दिस या हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, इंटू थीटा बी भी हमें गिवन है, तो वहां से अगर देखें तो वो 236 निकल रहा है. ठीक है. Now you can see the efficacy of fins. Now if we calculate the effectiveness of fin, in this case that would be around 2.5. ठीक है, क्योंकि 2.5 से ये ज़्यादा ही होगी इसकी वैल्यू. That is the heat transfer with fin divided by heat transfer without fin. So 690 divided by 236, it is around I think 2.67 or 2.7, around 2.7. ठीक है, तो it means that the heat transfer has been increased 2.7 times. And if we talk about the heat transfer rate, which has been increased by the inclusion or by the use of these fins, that is 454 watts. So it means that now we are dissipating additional 454 watt with the use of fin, which was not possible if we would not have been using those fins. So fins are very important application of this heat transfer. So up till now, this is chapter number 3. Now we are going to start chapter number 4, which is now because you सर must नेक्स्ट have क्लास heard. में. बिल्कुल जी नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल सर ये फॉर्मल, नेक्स्ट क्लास में होगा सर बिल्कुल प्लीज. जी नेक्स्ट क्लास में होगा, डोंट वरी. मैं आपको थोड़ा कहते हैं ना इंट्रोडक्शन तो दे सकते हैं ना, इसमें 10 मिनट है अभी. तो सर जी अगर एनी द आपने इंट्रो सर नो प्लीज. ओके ओके गुड. जस्ट नेक्स्ट. जस्ट जस्ट ये लिसन, बोल जाना just listen, सर जी just listen, just listen. It is not anything technical. ठीक है. You must have heard a name of ANSYS software. ठीक है, आप में से काफी लोगों ने ANSYS सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा. ANSYS सॉफ्टवेयर में क्या होता है बेटा, वैसे ये अब जनरल डिस्कशन हो रही है, इट इज नथिंग टू डू विद द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, अभी तक हमने जितने एनालिसिस किए हैं ये चैप्टर नंबर 3 में, उसमें सारे फार्मूले थे कि आप ये फार्मूला ड्राइव कर लें, ये फार्मूला ड्राइव कर लें, बाय पुटिंग द सिंप्लीफिकेशन एंड देन डू द कैलकुलेशन फॉर C1 एंड C2. ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पे ले जाऊं, जो कि गवर्निंग इक्वेशन थी हमारी, जहाँ पे हमने ड्राइव की थी, अब हम ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं. ये इक्वेशन 10 है हमारे पास. अब अगर हमने अभी तक चैप्टर 3 में क्या किया है कि हर जगह पे इसको सिंप्लीफाई किया है, और उसके बाद हमने उसका एक एग्जैक्ट न्यूमेरिक जो मैथमेटिकल सोल्यूशन, जिसको एनालिटिक सोल्यूशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो हम निकाल लेते हैं. ठीक है, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि उनमें वो वाली सिंप्लीफिकेशन जिसकी वजह से ये वाली टर्म्स जीरो होती हैं, राइट हैंड साइड जीरो हो गई, ये सेकंड टर्म थर्ड टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो हो गई, ये आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता. फिर हमें क्या करना पड़ता है कि फिर हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है. अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन के लिए फिर हमें हमें
डायरेक्ट सोल्यूशन कोई नहीं होता, उसके लिए फिर न्यूमेरिकल सोल्यूशन होते हैं। न्यूमेरिकल सोल्यूशन होते हैं या फिर उनको अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो आपकी, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हियर, इट हैज नथिंग टू डू विद द लेक्चर बेसिकली। तो उसमें क्या करते हैं हम कि आपके पास अगर एक एक डोमेन है, लेट्स सपोज कोई रेक्टेंगुलर डोमेन है, इसके ऊपर यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर है जी 500, यहाँ पे है जी 300, इस जगह पे है 200 और यहाँ पे है 100। अब हमें पता है कि अब ये वन डिमेंशनल हीट ट्रांसफर नहीं है, अब ये है टू डिमेंशनल हीट ट्रांसफर, क्योंकि ये एक्स पे भी फ्लो करेगी और ये इस साइड पे भी फ्लो करेगी और इस साइड पे भी फ्लो करेगी। ठीक है, अब जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन होगी वो सिंपल ये वाली इक्वेशन नहीं रह जाएगी। अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी पार्शियल स्केयर टी अपॉन पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करें? जो वन डिमेंशनल थी उसमें तो बड़ा इजी था, दो दफा इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सी1 एक्स प्लस सी2 वाली वैल्यू आ गई, बाउंड्री कंडीशन पुट की, सी1 और सी2 की वैल्यू निकाली और दैट वाज द एंड ऑफ इट। ठीक है, लेकिन जब टू डिमेंशनल केसेस आते हैं फिर हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। फिर इसमें जो कैलकुलेशन होती है, फिर हमें सॉफ्टवेयर उसके लिए इंजीनियर्स ने बनाए हुए हैं, जैसे एनसी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो पूरी डोमेन है इसको हम छोटे छोटे पीसेस में करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, और हर पीस के ऊपर फिर हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, और वो जो पीसेस में करने का अमल होता है इस जो बड़ी डोमेन को, उसको हम कहते हैं मैश। यानी कि कोई भी चीज होगी पहले उसका मैश बनाएंगे, और उसके जो जितने इंटीरियर पॉइंट्स है ना जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, ये जो इंटरसेक्शन हो रही है इन पॉइंट्स के ऊपर हम ये वाली इक्वेशन को लिखेंगे। ये वाली जो दो टर्म्स है ना, हर जगह पे हम ये वाली इक्वेशन को लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास एक सिस्टम आएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। वहां से एक्स की वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू है जो कि इन नोड्स के ऊपर होती है, और वो निकलती है ए इनवर्स पी से। ठीक है, और ये जो सारी कैलकुलेशन होती है जब आप वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और रन का बटन दबाते हैं बेस्ट जनरेशन के बाद, बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद, तो वो बेसिकली ये वाला जो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला ऑपरेशन हो रहा होता है, क्योंकि अगर ये 100 नोड है तो 100 नोड के ऊपर ये वाला ऑपरेशन होना है। ठीक है, और वो जो सिस्टम होता है वो आइटरेटिव होता है, जैसे जकोबी, गॉस सिडल, आइटरेटिव मेथड पता नहीं आपने पढ़े हैं वो सारे, फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं बैक एंड पे सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वो बोली मैं आपको सारी चीजें थोड़ी सी उसका आपको फिजिकल थोड़ी सी सिग्निफिकेंस और थोड़ी सी टेक्निकलिटीज बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जब आप सॉफ्टवेयर यूज करें इन द कमिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिल जाएगा फॉर योर एचएमटी, जो कि आप एनसी सॉफ्टवेयर के जरिए करेंगे, तो वो आपको फायदा हो उस नॉलेज का। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हम मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो इसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट भी देंगे जिसमें आप यू वुड बी गोइंग टू लर्न एनसी सॉफ्टवेयर फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्लूइड फ्लो एज वेल एज हीट ट्रांसफर। तो फ्लूइड फ्लो वाले जो FM2 का कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होती है, वो भी एनसी सॉफ्टवेयर में ही सॉल्व होती है, और ये जो डिफिजन इक्वेशन है ये भी एनसी सॉफ्टवेयर में ही सॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन दे आर सॉल्व न्यूमेरिकली, ये लिख लें, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल सोल्यूशन होता है, ये एनालिटिक सोल्यूशन नहीं होता। उसका एनालिटिक सोल्यूशन अभी हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, लेकिन वो वाला सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स केसेस में एप्लीकेबल नहीं रहता। उसके लिए फिर हमें न्यूमेरिकल सोल्यूशन या फिर उसको डिस्क्रीट सोल्यूशन भी कहते, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सोल्यूशन, इसको कहते हैं कंटिन्यूस सोल्यूशन। कंटिन्यूस सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ, जैसे टी ऑफ एक्स इज सी1 एक्स प्लस सी2। अब x की किसी भी वैल्यू के लिए आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होता है कंटिन्यूस या फिर एनालिटिक सोल्यूशन। लेकिन जब आप फिक्स पॉइंट्स में सोल्यूशन निकाल सकें, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो कि कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको थोड़ी सी
अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि जो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि ये वाली जो हम चैप्टर नंबर 3 आपको बताया है, ये किसी जगह यू आर नॉट गोइंग टू डिजाइन एनीथिंग बेस्ड ऑन दैट very fundamental analysis. You would be definitely using ANSYS सॉफ्टवेयर या फिर कोई और सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसी भी डिजाइन फॉर्म में चले जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं सारे, ठीक है। तो उसमें फिर वो चीज़ें आपको, ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने की हैं, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि वो सॉफ्टवेयर कहाँ से आपने ट्यूटोरियल्स उनके करने हैं, क्या चीज़ें करनी हैं, और आपको यूट्यूब के बारे में भी कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अच्छे ट्यूटोरियल हैं, वो देख लें। और तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। क्योंकि ये मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको कम से कम ये आंसर सॉफ्टवेयर पे इनके टाइम एक्सपीरियंस हो खत्म जाए। हो गया है। बिल्कुल जी, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू आतिफ फॉर गिविंग मी हेड्स अप ऑन दैट। सर फैजान था। अच्छा जी, फैजान, यू आर फ्री टू लीव एनी टाइम, यू डोंट नीड टू टेल मी अबाउट द टाइम इन एनी केस, ठीक है, because there is no compulsion of attending this class for anyone. So I hope that there is no query.